Hello everyone. In today's video I'm going to explain you that why does a light bend during refraction. Why does a light bend? The light ray bends when the change in speed occurs. As you all know, let me give you a brief introduction about refraction. During refraction, when a light ray enters from one medium to another medium, that is when light ray enters from one different medium to another different medium. So obviously the mediums are different, the media are different, so their optical density would be different. What is optical density? Optical density of a medium is how much the medium slows the speed of light. For example, the speed of light in glass is slower than the speed of light in air. So glass is having optical density greater than air. So that means having a greater optical density means that you have more capacity to slow the speed of light. Okay, so basically when it enters from one medium to another medium, there is a difference of optical density, so there becomes a difference of speed in the light. So how does the change in speed of a light makes it bend? A lot of people question this, and if you are having the same question, then you are a really good student and you should know why this happens. So I'm going to explain it today. Imagine this copy is a light ray. Can you imagine it? Light is actually not 2D but 3D. But while learning physics, we just take rays and we think light is a 2D something or like that. But light is 3D, right? And it travels in waves, and when it has to interact, then it interacts like a particle. Light has a dual nature. Whatever, we are not going so deep into it. But imagine this is a light ray. This is the left side of it and this is the right side of it. Okay, now you can imagine, and these all are the light waves, right? It is wide, there is some width. Okay, so you can see the this is you can say this is glass and this is air. Okay, this is glass, this is air. Glass has more optical density than air. Okay, now see, light ray strikes the glass obliquely, and as you can see, the left part of this light is gonna enter first. ये लेफ्ट वाला पार्ट पहले इंटर करेगा, देखो। और क्योंकि तुम्हें पता है कि एयर में स्पीड लाइट की ज़्यादा हो जाएगी, एयर में लाइट की स्पीड ज़्यादा हो जाएगी क्योंकि ऑप्टिकल डेंसिटी एयर की कम है, तो मैं कह सकती हूँ कि ये जो है ये वाले पार्ट की स्पीड ज़्यादा हो जाएगी, इसकी कम रहेगी क्योंकि अभी इसमें है, क्योंकि उसको भी टाइम लगेगा यहाँ पे आने में, इस वाली मीडियम में। इसकी स्पीड ज़्यादा हो जाएगी, इसकी कम हो जाएगी। तो क्या होगा, पहले ये ऐसे था, तो मैं इसको एक कार समझ लो, ये कार है, ये इसके दो व्हील्स हैं। अगर इस वाली व्हील की स्पीड, मतलब मान लो ये फ्रिक्शन यहाँ पे ज़्यादा है, यहाँ पे फ्रिक्शन कम है, और ये कार है, ये कार मूव करिए, यहाँ पे फ्रिक्शन कम है, इस कार की स्पीड, इस वाली व्हील की स्पीड ज़्यादा हो जाएगी, तो ये कार टिल्ट नहीं होने लगेगी, कुछ ऐसे, है ना। तो देखो, पहले लाइट कुछ ऐसे थी, मैं यहाँ पे एक पेन रख दे रही हूँ फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। लेकिन क्योंकि यहाँ की इसकी स्पीड बढ़ गई तो कुछ ये ऐसे हो जाएगी, है ना, टिल्ट होने लगेगी। एज यू कैन सी, ये टिल्ट हो जाएगी। इसको यहाँ पे ये वाली मीडियम को इसमें आने में टाइम लगेगा, एंड एज सुन एज इट एंटर्स देन दोनों की स्पीड सेम हो जाएगी। पर हम देख सकते हैं कि ये जो लाइट रे है ये बेंड हो गई, क्योंकि बेसिक सी बात है, लाइक तुम उसको समझो, एक पार्ट को तुम खींच रहे हो तो लाइक ये एक पार्ट है और तुम उसको खींच रहे हो तो वो टेढ़ा ही तो होगा, टेढ़ा होता जाएगा ना। तुम उसके सिर्फ एक पार्ट को खींच रहे हो तो उसकी पूरी बॉडी टेढ़ी हो जाती है, इसलिए ऐसा होता है। अगर तुम्हें समझ में आया होगा। अब तुम देखो, यहाँ से इंसिडेंट हुआ, यहाँ से रिफ्रैक्ट हुआ, इस वाले पॉइंट पे आके ना, मतलब जब यहाँ पे आ जाएगी तो फिर अब दोनों अब इस वाली मीडियम में आ गई, अब सही से चलेंगी। लेकिन जब दोनों डिफरेंट में थी तो एक टल्टेशन हो गया। तो तुम देखो, पहले ये इंसिडेंट ऐसे हुआ था पर रिफ्रैक्ट ऐसे हो रहा है। और मैंने तुम्हें बताया था कि इसकी फ्रिक्शन ज़्यादा है, इसकी फ्रिक्शन कम है। ये मैंने दूसरे तुम्हें टर्म्स में समझाया था, इसको कार मान के, और फ्रिक्शन इसकी ज़्यादा है, इसकी कम है। ये एक रोड मान लो, इसकी फ्रिक्शन ज़्यादा है, इसकी फ्रिक्शन कम है, ऐसे करके मैंने समझाया था। पर अब इसको हम, लाइट है, ये लाइट है, ये तुम्हारा ग्लास है, ये एयर है। ग्लास में स्पीड कम होती है, एयर में स्पीड ज़्यादा होती है। और हमने पढ़ा है कि जब वो
डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में जाता है तो बेंड, अगर मैं यहाँ से एक नॉर्मल ड्रॉ करूँ तो इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। क्या ये बात सच हो गई? अब क्या समझ में आया कि लाइट बेंड क्यों होती है जब स्पीड में वेरिएशन आती है? ये बस चीज़ें बता दी जाती हैं, बट कभी भी वी डोंट गिव द रीज़न कि एक्चुअली व्हाट हैपेंड. So this is actually what happens in reality, and I hope it's clear, crystal clear. Thanks for watching.